हेलो गाइस, आज हम देखेंगे बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। इसके बारे में हम डिटेल आज देखेंगे। ये 55 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब 55 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आर कंपल्सरी। तो ये क्वेश्चन है 2017 के, तो आपको नोट कर सकते हैं। विच सॉल्यूशन है, और आपको अगर कोई भी चीज़ अगर और चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में वो भेज दूँगा। तो ये मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन दैट बिजनेस फर्म मेक, डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम। हमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। ठीक 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये आता ही आता है, कभी कभी पूरा आता है, नहीं तो इसके पार्ट जो होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह है, आप नोट कर सकते हैं वीडियो से अपने पेन पेंसिल ले लीजिए, जो भी आप नोट्स बना सकते हैं। ये पहले का आंसर है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ फर्म द फाइनेंशियल मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल और सम ऑफ दीज फंक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम. While performing these functions, he is required to take different decisions which can be broadly classified into 3 groups. First, investment decision. Second, financing decision. Third, dividend decision. Then यहाँ पे investment decision को describe किया गया है, वो आप देख सकते हैं। आपको अगर पढ़ के बताना है तो नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ के बता दूंगा, आप नीचे कमेंट में कर दीजिए, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। पहला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Investment decision involves investment in both long-term assets and in short-term or current assets. This decision relates to effective utilization of funds invested in current assets and in fixed assets. In other words, there should be effective management of working capital and a sound capital investment policy should be followed. Efficient management of working capital has a definite effect on the profitability and the continued existence of business. Investment decision does involve the capital budgeting, keeping in view the limited funds available with the firm. All capital expenditure plan cannot be taken up. So out of alternative plan, the plan which give the maximum return as compared to cost of the capital is to be selected. In brief, investment made in current assets and fixed assets should be evaluated in relation to their expected return and risk, because these factors which affect the value of firm. As investment decisions affect the values of the firm, it has become the most crucial decision to be taken by a financial executive. देन इसका सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो इसे डिस्क्राइब करना है, स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस डील विद द फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ फर्म. In other words, financing decisions involve the selection of optimum proposition of debt and equity. A capital structure with a reasonable proportion of debt and equity capital is called the optimum capital structure. Ideally, a debt-equity mix is presumed to have reached its optimum, where the average cost of capital is found to be best maximum possible. After determining the combination of debt and equity, the finance manager should raise the required funds from the best available sources. Selection of the particular source of fund depends upon the cost of financing, nature of cost, and period of raising funds. इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट आ गया, डिविडेंड डिसीजंस. Another major areas of decision making by a finance manager is known as the dividend decision, which deals with the proportion of after the tax profit.
These profits are available to be distributed among the shareholder or can be retained by the firm for reinvested within the firm. The part of profit which is not distributed in impliedly retained in the firm. All firms, whether small or big, have to decide how much of profit should be reinvested back in the business and how much should be distributed among the shareholder as dividend. It should be crucial decision to determine the amount of surplus to be distributed as dividends to shareholder. Formulations for dividend policies bring into the focus retention policies of the firm. ये फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए हमारा 6 नंबर का, हाउस ऑफ कोल्थ ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ बेटर ऑपरेटिव क्रिटेशंस देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमें सब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो रखी है उसकी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में द मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट प्रॉफिट वैल्यू ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, एंड देन एक्सप्लेन कर देंगे इसे। आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा रोक देता हूँ क्योंकि पूरा पेपर पढ़ने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये आप नोट कर सकते हैं। ये बी पार्ट है, बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन में ए और बी था, तो बी पार्ट 5 नंबर का है। ये कैश फ्लो अकरिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर नॉट कंपेयर्ड, एक्सप्लेन द रीजन एंड हाउ कैन दे बी मेड द कंपेयर। तो इसका ये आंसर है द टाइम वैल्यू मनी, ये आप नोट कर लीजिए। और आपको किसी भी पेपर की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम वो वही पेपर दिखाऊंगा। मतलब आपको कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के पेपर चाहिए हो, जैसे एसएससी, यूपीएससी, तो वो सब भी रिक्वायरमेंट हो तो बता दीजिए। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। विदाउट सॉल्यूशन चाहिए आपको, लास्ट ईयर के चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा आपको। एसओएल रेगुलर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। व्हाट इज मीन्ड बाय द कैपिटल बजटिंग डिसीजन and what are its main features, explain the payback period method and profitability index method of the capital budgeting। एक्सप्लेन करना है तो इसमें कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करते हैं हमने। ये आंसर है कैपिटल बजटिंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी मार्क्स का, ये 11 नंबर का है तो इसे फुली एक्सप्लेन करना। पहले कैपिटल बजटिंग को हमने एक्सप्लेन किया, देन हमने फिर इसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया। फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, फीचर्स हमारे हो गए ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ हैवी फंड्स, तो हमने इन्वॉल्वमेंट ऑफ हैवी फंड्स को एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड फीचर हो गया हमारा इन्वर्सिबल डिसीजन, देन इसे हमने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा हमारा वाइटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसे एक्सप्लेन कर दिया हमने। आप इसे नोट कर सकते हैं। ये चौथा आ गया हमारा, क्योंकि 11 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा। ये चौथा हमारा है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, तो इसे नोट कर लीजिए आप। पांचवा मोर डिफिकल्ट टू मेक, इसे नोट कर लीजिए। सिक्स्थ हो जाएगा हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। सेवंथ हो जाएगा मेंटेनिंग फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ये नोट कर लीजिए आप, ये हो जाएगा। उसके बाद पे बैक के बारे में आप बता दीजिए, जितना आप बता सकते हैं सब नोट कर लीजिए, फॉर्मूलेज वगैरह डिसीजन। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन में हमारा एक आया है जो वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप पहले अपने आप सॉल्व करने से नहीं होता है तो आप इसका सॉल्यूशन दीजिए। आपको तब भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो विद सॉल्यूशन डालूंगा, खुद एक्सप्लेन करके क्वेश्चन करेंगे सॉल्व।
ये है इसका सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। आपको ऐसे समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अपने थ्रू। ये होगा, उसके बाद उसका बी पार्ट है। बी पार्ट 5 नंबर का, ये भी न्यूमेरिकल है, तो आप एक बार देख लें, न्यूमेरिकल नोट करिए, देन उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका आंसर आ गया 4 years। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। The cost of present capital is generally lower than the cost of equity and equity state the reason। हमें एक्सप्लेन करना है इसे भी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हमने फुली एक्सप्लेन हो रहा है हमें। ये काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि इसका नंबर भी 5 है। ये हो गया। उसके बाद हमने इसे एक्सप्लेन करना है, इसके पॉइंट्स को। फिक्स्ड डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंशियल राइट्स, प्रेफरेंशियल राइट्स, ये हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसका पार्ट बी न्यूमेरिकल है, तो हम न्यूमेरिकल नोट करके सॉल्व कर लीजिए। पहले आप नोट कर लीजिए, ये रहा। देन ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, explain the concept of financial leverage, examine the impacts of financial leverage on the EPS, does the financial leverage always increase the EPS। ये हमने फाइनेंशियल लीवरेज है पहले एक्सप्लेन किया हमने फुली। देन उसके बाद पहले फाइनेंशियल लीवरेज एक्सप्लेन कर दिया जितना हो सकता है, उसके बाद हमने ये 11 नंबर क्वेश्चन तो फुली एक्सप्लेन करना। उसके बाद इसके अंदर के फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज को हमने एक्सप्लेन करना है। ये वो हो गया, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें वाइड, जितना वाइड कर सकते हैं उतना वाइड करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे नंबर मिलते हैं। कॉम्पिटिशन्स और फाइनेंशियल लीवरेजेस, ये होगा, उसके फॉर्मूले वगैरह हैं, ये आप नोट करें। ये आप लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यूटिलिटी लिखनी है जरा उसकी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन ब्रीफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ फर्म, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ये लास्ट क्वेश्चन आ गया मैम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ considered while determine the need of working capital। इसे एक्सप्लेन करना है। इसके ऑप्शन में, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाउ आर दे सिमिलर विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। ये एक्सप्लेन करते हैं हमने, ये क्वेश्चन पूरा अब खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। कोई इशू हो तो देन कमेंट इट।